Morning. We are ready with the solution of the test number 4. So question number 1 is saying the amount of charge that would flow in the 2 hours through an element of an electric bulb drawing a current of 0.25 ampere is, मतलब कि आपको यहाँ टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको यहाँ चार्ज निकालना है. So the formula between Q, T and I is I equal to Q upon T. So Q equal to I into T. Now the value of I is 0.25 and time is 2 hour and we take the time in seconds. So 2 into 3600. The 1 hour is equal to 60 into 60 seconds, that is 3600 seconds. So now 0.25 into 2 is equal to 0.5 into 3600, and when we multiply it will come 1800 coulomb. So answer is B, 1800 coulomb. Now question number 2 is saying in a particular beam the current is 80 microampere, time is each second मतलब कि 1 second, and we have to find the value of number of electrons. So dear, microampere is equal to 10 to the power minus 6. Micro means 10 to the power minus 6, milli मतलब 10 to the power minus 3, nano मतलब 10 to the power minus 9. Now we know that I equal to Q upon T and Q equal to NE. So we can say I equal to NE upon T. So N equal to, यहाँ T चला जाएगा और E यहाँ आ जाएगा, तो N equal to I T upon E. Now to put the value of I, T and E, so we will have 80 into 10 to the minus 6 into 1 upon the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19. When we solve it, so we will get N equal to 50 into 10 to the power 13 or N equal to 5 into 10 to the power 14. The number of electrons is 5 into 10 to the power 14. The question number 3 is, you have to find the value of resistivity where the value of resistance is 26 ohm, length of wire is 1 meter and the diameter of the wire is 0.3 millimeter. So first of all, any formula among this? So formula is R equal to rho into L upon A. So we can say rho equal to R into A upon L. So we are having the value of R, we are having the value of L, and we are having the value of diameter. So by the diameter we can find the area, and when we having all the values, so we can find the resistivity. So first of all, convert it all in SI unit. So R is having 26 ohm SI unit, L equal to 1 meter SI unit, but diameter is 0.3 mm, मतलब कि millimeter में. So it will be 0.3 into 10 to the power minus 3 meter. Now it is again solved, so 3 into 10 to the power minus 4 meter. Now we know that R equal to diameter upon 2, so radius equal to 3 by 2 into 10 to the power minus 4 meter. The area of circle is pi r square. So now put the values. Rho equal to R की value 26, A की value pi r square and L की value 1. So we will have 26 into pi into r square. When we solve it, so it will come 1.86 into 10 to the power minus 6 ohm meter. The unit of resistivity is ohm meter. So now we move on to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R. अब अगर हम इसके 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. तो जब हम किसी वायर को इक्वली डिवाइड करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इक्वल डिवाइड हो जाता है. अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते तो हो जाता R/2 R/2, 3 में करते तो R/3 R/3, बट हमने यहाँ कितने में किया हुआ है 4 में, तो सबका कितना हो जाएगा R/4 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 एंड R/4. क्वेश्चन नंबर 5 को इसी में आगे बढ़ा दिया है कि अगर अब इसी को हर एक पार्ट को, जो 4 पार्ट डिवाइड किए तो हर एक का पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, सबका रेजिस्टेंस आ गया R/4. अब इन्हीं को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए और जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा. तो हमने सबकी वैल्यू मान R1 R2 R3 R4 इक्वल टू R/4.
तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 पुट कर दीजिए 1/r/4 r/4 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 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर सो 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r LCM is r so it will be 16/r that is also given the option but it is 1/r so RP will be r by 16 so the correct answer is option A r by 16. Now question number 6 is कि आपके पास 2 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि क्या बना रहे हैं एक स्क्वायर बना रहे हैं। अब इसके डायगोनल के अलोंग क्या करना है हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डायगोनल कोई भी डायगोनल लिया और उसको इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ का अलोंग करना है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए तो पहले आपको देखेंगे ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे होंगे सीरीज में। तो सीरीज में इसका आंसर क्या आएगा 2 + 2 = 4 तो 2 + 2 = 4। ये दोनों भी कैसे देखेंगे सीरीज में तो 2 + 2 = 4 और ये दोनों कैसे देखेंगे पैरेलल में। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का रेजिस्टेंस क्या आता है जब पैरेलल में सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 2 ओम। आप सॉल्व करके देख लीजिए 1/r = 1/4 प्लस 1/4 2/4 और जब उसको आप पलटेंगे तो 4/2 = 2 ओम। सो करेक्ट आंसर इज 2 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है रजिस्टर दिया हुआ आपको 500 ओम करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ 30 मिनट। आपको पता करना है सर्किट से कितनी हीट फ्लो होगी। तो IRT के टर्म में हीट का फॉर्मूला होता है I² R × T। I की वैल्यू दी है R की वैल्यू दी है और T की वैल्यू अगेन मिनट में दी है। आपको कन्वर्ट करना होगा इसको सेकंड में तो आपको उसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 × 500 × 1800 or when you will solve you will get 2.25 × 10⁻⁷ the SI unit is joule. Now move on the question number next. Question number next कह रहा है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या होती है। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होती है जो कि करंट की डायरेक्शन को पता करती है या करंट की वैल्यू को पता करती है। बट गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम इसको अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम गैल्वेनोमीटर में एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में शंट बोलते हैं SHUNT शंट। ठीक है तो कितना क्या यूज़ करते हैं उसमें लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड द रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लो। मतलब अगर एक आइडियल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना होना चाहिए 0। जब हमें इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो लो रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाता है हाई रेजिस्टेंस एंड पैरेलल की जगह क्या हो जाता है सीरीज। और अगर हम एक आइडियल कंडीशन की बात करें तो यहाँ भी आइडियल कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है कि आपके पास एक कॉपर वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है रो। अब अगर इस वायर को डबल कर दिया जाए, अब आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 शायद आपको एक से लग रहे होंगे लेकिन ये एक से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है वायर को आपको खींच के डबल करना है और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि उसकी लेंथ को डबल करना है। दोनों ही अलग अलग टर्म है। एक में आप वायर को खींच के जब डबल करते हैं तो लेंथ तो चेंज होती है साथ ही साथ एरिया भी चेंज होता है। मतलब अगर लेंथ अगर डबल हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा आधा। और एक होता है डायरेक्टली डबल करना मतलब कि यही लेंथ है एरिया है इसकी लेंथ को डबल करना। तो पहली बात तो ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती है, चाहे आप उसको कैसे भी डबल खींच के करें या डायरेक्ट करें और रेजिस्टिविटी कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो रो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। बट अब इसी टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में यही कहा गया है, एक बार कहा है कि लेंथ को आपको खींच के पुल करके डबल करना है, L का 2L करना है और एक क्वेश्चन में कहा है कि वह लेंथ को डबल करना है।
तो माय डियर यहाँ आपको याद रखिए, अगर ये आपके पास यहाँ लेंथ L थी और एरिया A था तो रेजिस्टेंस क्या था, R इक्वल टू रो L अपॉन A। लेकिन अब आपने इसको इस तरीके से खींचा है कि इसकी लेंथ कितनी हो गई 2L, L डैश इक्वल टू 2L। तो यहाँ जब आप इसको खींच रहे हैं तो एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा A डैश इक्वल टू। तो R डैश इक्वल टू क्या आएगा, रो L डैश अपॉन A डैश, दैट इज रो इक्वल टू 2L अपॉन A/2, दैट इज 2 ऊपर चला जाएगा तो रो L A इंटू 4, और रो L अपॉन A क्या है R, तो क्या आ जाएगा ये 4R। तो R डैश इक्वल टू क्या आ गया 4R, यहाँ कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया जब आप खींचते हैं। अगर डियर यहाँ 3 करते, अगर आप इसको क्या करते 3 टाइम्स करते तो कितना आ जाता, यहाँ आ जाता 3 और यहाँ आ जाता A/3, 3 कितना हो जाता 9। अगर आप यहाँ 4 टाइम्स करते तो 4 का कितना हो जाता 16, 5 25। इट मीन्स अगर आप किसी वायर की लेंथ को खींचकर n टाइम्स करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस n² टाइम्स हो जाता है। यहाँ देखें, अनपुल्ड केवल लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया A था, एरिया A ही रहेगा। अब आप L डैश इक्वल टू 2L लेकिन A डैश इक्वल टू A, तो रो डैश इक्वल टू R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L डैश अपॉन A डैश। तो R डैश इक्वल टू रो L डैश इक्वल टू 2L अपॉन A, तो कितना आ गया 2 रो L अपॉन A, मतलब R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2R। तो यहाँ 2 केस हैं, ध्यान से रखिएगा इन क्वेश्चंस को।